Bidri ware is a handcraft that is known for its stunning beauty and intricate craftsmanship. The article is made of inlaying silver designs on a shiny black metal surface, creating a unique contrast between black and shiny silver inlay work that makes it stand out. It's highly valued for its elegant and exotic look and is considered a symbol of wealth and heritage in India. मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा जो है ना 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे ग्रैंडफादर के हाथ के नीचे रह के मैंने काम सीखा है। तो मैं जो है स्टेट अवार्डी हूँ। मेरे ग्रैंडफादर नेशनल अवार्डी है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर नेशनल अवार्डी है। हम जो हमारे बड़ों से हमारे सुनते थे साहब, ये बिदरी क्राफ्ट जो है आज से 850 साल पहले ये जो है ना ईरान से निकल के जो है ना सर ये इंडिया को आया, ये बिदर को आया। उसके बाद जो है ना बिदर में चलते रहा। उसके बाद जो है ना बीच में एक क्राफ्ट ख़त्म हुआ, फिर चालू हुआ, फिर ख़त्म हुआ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तो उनका जो कारखाना जो वर्कशॉप था वो बिदर में था, नई कमान के पास, चौबारे के पास उनका कारखाना था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया सर, बिदर निज़ाम स्टेट में था तो वो जो है ना कर्नाटक को गया। तो उस टाइम पे जो अपने आंध्रा गवर्नमेंट था तो ये क्राफ्ट यहाँ पर आना बोल के हमारे को उस ज़माने में जो है ना पटन चोरू के पास वर्कशॉप दिए थे। तो पटन चोरू पर जब वर्कशॉप दिए तो वहाँ रात को डर लग रहा भाई, ये 52 का बात है, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह बोलते तो डर लग रहा भाई बोल के हमारे को सिटी में जो बोले तो यहाँ पर लाके हमारे को ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर बिदरी क्राफ्ट। मैं अभी 4th जनरेशन हूँ। अब ये जब से जो है हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर, उसके बाद मेरे अंकल, उसके बाद फिर अभी मैं ये काम चालू हो रहा समझिए। The name Bidri comes from the city of Bidar, located in the state of Karnataka, India, which is the main center for this craft. The art of Bidri ware was first developed in India during the period of Bahmani Sultan in the 14th and 15th centuries. Many skilled craftsmen and artists, including those from Persia, migrated to the kingdom during this time. They were welcomed and encouraged by the rulers who valued and supported arts. As per Indian oral history, an Iranian craftsman, Abdul bin Kaiser, was invited by Sultan Ahmad Shah Bahmani to decorate the royal palaces and courts. He brought with him the techniques from ancient Persian art, which were then combined with the local Indian techniques to create the unique art form of Bidri ware. It is said that Kaiser joined hands with the local artists to create the unique craft that is now known as Bidri ware. The craft received royal support, with the artists being given the resources and facilities they needed to carry out their work. Bidri articles were typically owned by the royals and were often used as a display of wealth. It was a symbol of opulence and aristocracy. Bidri ware is a geographical indication. The quality and reputation of Bidri ware is related to its historical place of origin in Bidar and the unique skill set of the artists of Bidar. The characteristic black color of Bidri ware is due to its unique coloring process involving the application of soil found only inside the Bidar fort. The geographical indication tag conveys an assurance of quality and distinctness for the Bidri ware. It provides an opportunity for the artists to leverage the value of their geographically unique products and also help them to attract customers. जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ मिलना था वो फैसिलिटीज़ आज नहीं मिल रही हमारे को। जैसा फॉर एग्जांपल 60-70s में क्या था, गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी देती थी हमारे को। जैसा फॉर एग्जांपल आज हम 600 रुपये तोला चांदी लेके आ रहे हैं, 600 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स लेके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट मेरे ग्रैंडफादर के पीरियड में आपको जो है ना 300 रुपीज़ से मिलता था, यानी कि सब्सिडी देते थे वो लोग। मगर आज जो है ना वो सब्सिडी नहीं है, गवर्नमेंट की जो है ना हेल्प नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल जैसा मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे, जब तक कि हुकूमत की सरपरस्ती कोई क्राफ्ट के ऊपर नहीं है वो क्राफ्ट तरक्की नहीं करता। जैसा फॉर एग्जांपल पहले के राजा महाराजा जो है ना आपको जो है आर्ट की कदर करे बोल के आपको ताजमहल नज़र आ रहा बोलते थे। ताजमहल के ऊपर जो फ्लावर डिजाइंस वगैरह है आप देखिए जाके, ताजमहल के फूल पत्ते बात करते कि कितनी खूबसूरती है जो इतनी दूर से देखने के लिए आए। तो आज की जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रही हमारे को। इसी वजह से क्या था, एक ज़माने में 23 वर्कर्स थे, आज ख़त्म होते होते आपके पास अभी इस वक्त हमारे 9 वर्कर्स रह गए।
उसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट की सपोर्टिंग न रहने की वजह से। पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑर्डर देती थी, आप माल बनाओ बोलती थी, अपने शोरूम में रख के बेचती थी, जैसे गोलकुंडा हैंडीक्राफ्ट में रख के बेचती थी। आज कहाँ है हमारे को फैसिलिटीज़? हमारे कोई फैसिलिटीज़ न रहने की वजह से या हम खुद अपने सेल्फ पे वर्कर्स को हम चला रहे हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की अगर सब्सिडी रही तो फिर पलट के 23 वर्कर्स आ सकते। अब आने वाले दिनों में पता है ये काम होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, मगर गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई क्राफ्ट तरक्की नहीं करता। गवर्नमेंट की अगर सपोर्टिंग रहेंगी तो और ज़्यादा हमारे को सपोर्टिंग रहेगी। The base metal of Bidri ware is an alloy of copper and zinc mixed in the ratio of 1:16. The silver or brass is inlaid into the alloy. The process of Bidri ware is time consuming, and even the making of smallest piece takes up to 2 days. In some rare cases, few pieces could even take months to make. The first step in creating Bidri ware is molding. A sand casting flask, which is a 2-part metal frame that forms the sides of the mold, is used. The masterpiece model is then embedded between the two halves and dusted with a powder release agent. The two halves of the frame are then filled with a mixture of sand and castor oil, which acts as a binder. The surface is then scraped flat. The artist stands and puts his body weight onto the sand to achieve the desired shape. This process is time consuming and requires a lot of effort, as it is very important to get the mold just right. Once a groove is ready, the masterpiece is then removed, leaving an impression of the required shape. The two halves of the casting flask are then put back together and tightly bonded. In the next step, a hot molten alloy of copper and zinc mixed in the ratio of 1:16 is prepared. The alloy is then poured into the groove, and the sand solidifies the molten alloy almost immediately. The cast piece is then ready. The piece is then filed and cleaned to get the perfect shape. This cast is then coated with a solution of copper sulfate for a temporary black coating. The black coating on the Bidri ware makes it simpler for the artist to draw designs by hand using a metal stylus known as color. The designs are hand drawn directly onto the article, but basic tools like compass can help in getting the position and arrangement of the intricate design. The cast piece is then clamped into the molten wax to hold it steadily for engraving. The craftsman uses a small chisel to engrave the design on top of the original hand-drawn etching. Thin wires or flattened strips of pure silver or brass are then delicately tapped into the engraved pattern by the inlayer. मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और यहाँ की पैदाशी है और जो है 30 साल हो रहा है लाइन में आके। पहले तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग दी थी एक साल में ये बिदरी काम की। तो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग में जो है मैं 1 साल में ट्रेनिंग में ये काम सीख लिया था। यहाँ बाजू की ट्रेनिंग थी, फिर उसके बाद उधर सीख लेके फिर इधर आया तो मैं यहीं छूँ 30 साल से। उसके बाद जो है यहाँ पर पूरे A to Z काम आता समझो, मोल्डिंग से लेके इंग्रेविंग, डिज़ाइनिंग और सिल्वर फिटिंग, ये पूरे काम है A to Z अपने को काम कर लेते समझो। जब से अब तक यहीं है समझो। और अपने को स्टेट अवार्ड भी मिला से डिज़ाइनिंग में, गवर्नमेंट से स्टेट अवार्ड मिला से 2012 और पूरा काम कर लेते समझो। The article is polished and buffed to a smooth finish using various hand tools such as piles, sandpaper, and different buffing paints. At this time, the temporary black coating is removed, revealing a shiny silver inlay work. Here comes a final blackening process, which uses the soil found only inside the walls of the Bidri fort. This soil is known for its special oxidizing properties.
मट्टी जो लाते ना सब, ये जो मड रहता है स्पेशल टाइप ऑफ मड इन ओल्ड फोर्ट, पुराने जो किले रहते हैं, जो पुराने किले में से हम लोग जो है ना वो मड लेके आते हैं। अब जैसा फॉर एग्जांपल जो है ना बीदर का फोर्ट है, पूरे इंडिया लेवल में जो है ना बीदर का फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत जो है ना बड़ा किला है। तो वो किले के क्या करते हैं, तहखाने के अंदर, जैसा तहखाना मीन्स अंडरग्राउंड पे, वहाँ से जो है ना मट्टी झड़ते रहती, वो मट्टी क्या हम लोग क्या करते हैं उसको चकते, वो मट्टी से क्या मट्टी झड़ते रहती। तो वो मट्टी जो है ना सर्दियों में ज़्यादा झड़ती मट्टी, वो धूपकाले में और बारिश में कम होता। तो वो मट्टी क्या करते हैं हम लोग उसको चक के लेके आते हैं। तो जब चकते हैं तो उसमें खारापना रहा, तो क्या करते हैं वो मट्टी हम लोग थैले में से लेके लाके हम लोग क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके रखते हैं। जब अपन ऑक्सीडाइज करने के टाइम पे उसको क्या करते हैं, जब अपन बॉईल करने को जाते हैं तो वो मट्टी के अंदर अमोनियम क्लोराइड मिक्स करते, अमोनियम क्लोराइड मिक्स करने के बाद उसको बॉईल करते। उसको बॉईल करने के बाद से जो जिंक जो बफिंग आइटम रहता उसके अंदर डालते, क्या होता है इमीडिएटली जिंक टर्निंग ब्लैक एंड वाइट सिल्वर। आपको मैजिक जैसा लगता है ये चीज़। ये 50 साल हो रहा, उत्तर में आएगा। उसके बाद ये सोसाइटी में जब से समझो अभी फिनिशिंग का काम करते हैं, पहले चांदी का, अब चांदी का काम नहीं दिखता मुझे आँखें को, तो उस से फिनिशिंग का काम करता हूँ। घर पे करते थे अपना काम। अभी उस टाइम में जो चांदी महंगी हो गई, 6 रुपये तोला थी, उसके बाद 12 हो गई, 50 हो गई। 50 होने के बाद में सोसाइटी में आ गई। This soil is mixed with water and ammonium chloride, then boiled, and the article is dipped in this mixture. This process gives the alloy a permanent glossy black color, while the silver retains its brightness. The attraction of Bidri ware is due to the contrast between the inlaid silver or brass and the alloy, which gets oxidized into a deep characteristic black. बिदरी आर्ट क्या है, ये एक अपना हैदराबाद का एक कल्चर है, ये कल्चर है। तो ये क्या है मालूम है, हर आदमी के घर में रहना चाहिए कि ये आर्ट को प्रमोट कैसा होना। चलो तो हर आदमी जो है ना, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इसको प्रमोट करते हैं जो गिफ्टिंग के लिए। तो हर आदमी जो है ना, मेरा ये कहने का मतलब है कि हर आदमी इसको अपने घर में रखना कि बिदरी आर्ट है बोल के, जैसे ट्रेडिशनल वर्क है बोल के बाहर जाता, अमेरिका वगैरह सब जो भी है लोग लेके जाते हैं हमारे पास से बना के। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई कि गवर्नमेंट का हमारे को सपोर्ट हो और कारीगर और बड़े, कारीगर और काम हो। जैसा 39 से लेके आज तक राइट नाउ 2022 में है अपन, 1939 से जो है विजिटर बुक है मेरा। ऐसा तो मेरे 125 साल से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का चल रहा, मगर अभी क्या है 2022 में अपन आए हैं। काम को ये बढ़ना चाहिए, काम ख़त्म होना नहीं चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल कल्याणी काम बोल के था, जो लोहे के ऊपर काम होता था, आयरन के ऊपर इंग्रेविंग होता था, वो 200 साल पहले ख़त्म हो गया। और एक काम था मुनव्वत काम मीन्स वो एम्बोजिंग वर्क होता था, वो भी ख़त्म हो गया। अब ये बिदरी आर्ट है, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको आगे आए, इसको पकड़े और इसको संभाले, इसको आगे लेके गए, कारीगर को सपोर्ट करे, कारीगर को अच्छा पैसा दे के माल खरीदे, तो फिर ये जो है ना काम ऊपर आएगा। हमारी ये इच्छा है।